If you keep a container outside in the sun, what will happen? The water will evaporate. But in that container, water from the surface is coming out and entering in what? Vapor phase. What is evaporation? When the volatile liquid particles, when the particles of volatile liquid at surface overcome the attractive forces liquid particles escape into vapor. Therefore, evaporation is what? Surface phenomenon. Surface phenomenon. But boiling is bulk phenomenon. The reason ये है, in evaporation, if you take a container, fill the liquid, जो liquid के particles हैं वही बाहर निकलते हैं because of collisions. Due to collisions, kinetic energy of liquid particles may increase. Just like gases. किसी का kinetic energy बढ़ जाएगा, किसी का कम हो जाएगा. When it will overcome the attractive forces, it will enter in the vapor phase. Yeah, it will escape out in the vapor phase. But in bulk phenomenon, you supply heat. Evaporation can take place at any temperature. Evaporation can take place at any temperature. हर टेम्परेचर पे लिक्विड के पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं. तो सबसे बड़ी जो खास बात है, इफ यू चेक, लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर बन रहा है. इफ इट इज ओपन कंटेनर और एक्सटर्नली कुछ प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं आप, so the total pressure on the surface is what? Total pressure on liquid surface is atmospheric pressure. So in that atmospheric pressure, the vapor pressure of liquid is included. पर जैसे जैसे आप बॉयल करोगे, हीट करते जाएंगे, ये वेपर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी. और वेपर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, what will happen? It will start applying the pressure equal to our atmospheric pressure. So one situation arises when this atmospheric pressure is provided by what? Only vapors. अभी क्या हो रहा है कि बाहर का एयर भी प्रेशर लगा रहा है सरफेस के ऊपर, लिक्विड का वेपर भी प्रेशर लगा रहा है. बट जैसे जैसे आप हीट करोगे, वन सिचुएशन विल अराइजेस व्हेन द pressure is totally applied by what? Vapors. That situation is what known as boiling. What is boiling basically? या boiling point basically. अपन यहाँ लिख लेते हैं. Can take place at a specific temperature. Known as boiling point. Known as boiling point. What is boiling point? The boiling point is because you are supplying heat.
सप्लाई हीट करने से क्या होगा, जो लिक्विड का बल्क पार्टिकल्स है वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट वही है कि the vapor is coming out from the liquid and starting applying the pressure on the surface of the liquid, and you are heating, more and more vapors are generated, more vapor pressure will be there. So at one time, all the pressures, your atmospheric pressure is contributed by only vapors. So what is boiling point? The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure or outside pressure or atmospheric pressure. This boiling point क्या है? Boiling पहले देख लीजिए. Boiling occurs at a specific temperature known as boiling point, but evaporation occurs at all temperature. Boiling is bulk phenomenon, evaporation is a surface phenomenon. The temperature at which the vapor pressure liquid is equal to the surrounding pressure. As at boiling point, vapor pressure equal to P surrounding, P external, P atmospheric. Normal boiling point, when P surrounding is what? 180. Normal boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है. 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा? 180. Because we know the value of surrounding pressure, 180. And we know the boiling point. Boiling point पे वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल. The boiling point of a liquid increases with increase in surrounding pressure and decrease with decrease in surrounding pressure. जितना ज़्यादा surrounding pressure ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर को उतनी ही रीच करनी पड़ेगी. तो हीट भी क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा करनी पड़ेगी. Done? Now, अब एक और एग्जांपल समझिए. मेरे पास दो लिक्विड्स हैं. मेरे पास लिक्विड 1, लिक्विड 2. लिक्विड 1 लेस वॉलेटाइल है, ये मोर वॉलेटाइल है. एट टेम्परेचर T इसका वेपर प्रेशर P1 है. इसका P2 है मान लीजिए. तो कौन सा ज्यादा होगा, P1 या P2? लेस है ये, तो P1 इज लेस देन P2. जो गैस ज्यादा वॉलेटाइल है, जो लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल होगी, उसका प्रेशर क्या होगा? ज्यादा. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो सेकंड लिक्विड है, उसकी ज्यादा हो गई. अब दोनों को रीच करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दोनों को क्या रीच करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीच करना है. तो वेपर प्रेशर क्या रीच करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीच करना है दोनों को. तो किसको रीच करना आसान है? जो पहले से जिसका प्रेशर ज्यादा है उसको रीच करना आसान. हाँ है ना बेटा. जिसका पहले से प्रेशर ज्यादा है उसको रीच करना आसान है, क्योंकि उसको कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. उसका ऑलरेडी प्रेशर क्या है? ज्यादा. तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? लेस वॉलेटाइल. So T2 will be what? Less than T1. Less than T1. तो जिसका वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा था, तो उन सारे लिक्विड को, मेरे पास 100 लिक्विड है, सबके अपनी अपनी वेपर प्रेशर है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा उसका प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा. और जिसका प्रेशर पहले से ही ज्यादा है उसको रीच करना इजी होगा. तो हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट?
vapor pressure at a temperature at T temperature सिंपल है वेपर प्रेशर एट टी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम सिंपली क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लेस volatile liquid has lesser volatile liquid has higher boiling। तो वही इक्वेशन है, लिक्विड बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे बॉइलिंग पॉइंट रीच कर गया, जब तक सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक सेम टेम्परेचर मेंशन रहेगी। Azeotropes देखिए क्या लिखा हुआ है, Azeotropes are non-ideal solution of a specific composition showing large deviation which boils at a constant temperature as the vapor phase composition is same as the liquid phase composition। ये थोड़ा मुश्किल सा पार्ट है। हमने एक ग्राफ दिया था करने के लिए आपको, वो ग्राफ किया आप लोगों ने? वो ग्राफ करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। पीएस वर्सेस एक्स एंड पीएस वर्सेस वाई ग्राफ को प्लॉट करनी थी, सेम प्लॉट पे करना था जो ऑलरेडी हमने एक्स का बना के रखा है। ओनली डिफिकल्ट ग्राफ, ओनली ये ग्राफ हमारे पास है, पीएस वर्सेस एक्स का ग्राफ है। जहां पे एक्स इक्वल टू 1 होगा श्रेयस, वहां पे वाई भी क्या होगा? 1। जहां पे वाई 1 होगा वहां पे वाई एक्स से भी 1 होगा, जहां पे एक्स से 0 है वहां पे वाई भी 0 होगा। जहां पे एक्स से 1 होगा वहां पे एक्स भी क्या होगा? 0। वहां पे वाई भी क्या होगा? 0। यहाँ पे वाई भी 1। सिंपल है। अब थोड़ा गौर करना, इस ग्राफ का क्या सेंस है बताइए? या पहले पहले बना लेते फिर समझाते हैं। इस पॉइंट के इस पॉइंट पे एक्स से 1 है, वाई भी क्या है? 1। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1 जो प्रेशर है वो कौन सी है? पी नॉट है। समझते आना? विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 1 तब भी प्रेशर क्या है? पी नॉट इक्वल टू 1। बिकॉज जो अगर आपने एक्स इक्वल टू 1 ले लिया, इट मींस इट इज अ प्योर लिक्विड, इसका जो वेपर कॉम्पोजिशन होगा वो सेम ही होगा जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन होगा। जो हमने न्यूमेरिकल किया था तो और वाई भी निकाला था हमने, वाई भी निकाला था हमने, वो अलग आए थे। इसका मतलब अगर एक्स से अलग है, एक्स से नॉट इक्वल टू 1 है, तो वाई विल नॉट इक्वल टू 1 होगा, बट इट विल बी नॉट इक्वल टू एक्स से, सेम नहीं होगा, सॉल्विंग सेम नहीं होगी। पहले दिमाग सेट करिए, इस क्वेश्चन में एक्स से क्या था? 2/5, एक्स भी क्या था? 3/5। अगर इसमें आपको वाई निकालने बोलूं तो आप क्या निकालते? वाई अपॉन वाई बी इक्वल टू, यही था ना फंडा, हाँ 400 अपॉन 600 फास्ट सॉल्व करने के लिए, जो बोर्ड में अलाउड नहीं है। 2/3 4/9। तो वाई क्या है? 4/13। तो अगर कॉम्पोजिशन में अगर दो लिक्विड को मिलाया हमने, एक्स से 2/5 है, वाई 2/5 आया क्या? बताइए। नहीं क्यों नहीं आएगा? इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब दो लिक्विड को आप वेपर बना रहे हो या वेपर खुद बन रहा है, वो जो लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल है
उसका वेपर में ज्यादा क्वांटिटी बढ़ेगा ना। दो लिक्विड का मिक्सचर है, किसका वेपर ज्यादा जनरेट होगा? जो ज्यादा वॉलेटाइल है। एक्स ए 2/5 था और वाई ए 4/13 है। एक्स ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 400 ml ऑफ एच। क्लियर? हाँ सर। वाई भी क्या है यहाँ पे? वाई भी क्या है? 9/13। तो वाई भी ज्यादा है या 3/5 ज्यादा है, बताइए। कौन ज्यादा है? बोलो। 3/5 ज्यादा है, 9/13 ज्यादा है? 9/13। 9/13। 9/13। इतने साफ दिख रहा है ना कि बी की वेपर प्रेशर 600 ml था, बी ज्यादा वॉलेटाइल था, उसके वेपर ज्यादा बनेंगे डेफिनेटली। तो ऑब्वियसली जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन होगा, हम समझिएगा अच्छे से, बिल्कुल फंडामेंटल है, जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन होगा वही वेपर का कॉम्पोजिशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं प्योर लिक्विड लूंगा, एक ही लिक्विड है, जो लिक्विड कॉम्पोजिशन होगा वही क्या होगा? वेपर। वेपर का कॉम्पोजिशन। एनी डाउट इन दिस? सेम फॉर दोनों लिक्विड। जो मैं यहाँ पे ग्राफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जब एक्स ए 1 है तो वाई ए 1 है फॉर सेम प्रेशर पी। तो एक्स का ग्राफ बनाओ या वाई का ग्राफ बनाओ, दोनों स्टार्ट कहाँ से होगा? उसी पॉइंट से। क्लैरिटी है श्रेयस? हाँ सर। पक्का? ठीक है। सिमिलरली एंड कहाँ पे होगा? उसी पॉइंट पे जो पी नॉट बी वाला पॉइंट है। तो बीच का जो ग्राफ है वो तो उस लाइन पे लाई नहीं करेगा। उसको कैसे प्रूफ, कैसे बताएंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, अभी आपको ये बताया था मैंने कि पी नॉट बी अगर पी नॉट ए से ज्यादा है, तो वो क्या सिखाया था मैंने? वाई बी इज मोर देन व्हाट? XB। एक्स बी। ये करवा चुका हूँ। तो अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट उठा लेता हूँ, या सिमिलरली, ठीक है, कोई रैंडम पॉइंट उठा लेता हूँ, वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर दिया, तो ये इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई एक्स बी है मान लीजिए। ठीक। हाँ सर। अगर ये एक्स बी है और ये टोटल प्रेशर है, ये पी एस है ना? और फिर क्लियर है, उस एक्स बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी एस है। उस एक्स बी कॉरेस्पॉन्डिंग जो पी एस है, उस पी एस के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई बी क्या होगा? एक्स बी से ज्यादा या कम? जी। इस एक्स बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने दो लिक्विड को मिलाया, वेपर जनरेट हुआ, प्रेशर क्या है? पीएस। अब उसी पीएस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेपर बना, उसमें कॉम्पोजिशन क्या होगी? वाई बी विल बी मोर देन व्हाट? एक्स बी। तो वाई बी का पोजिशन कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। वाई बी का पोजिशन कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। उसी तरह जो स्ट्रेट लाइन है जो हमने बनाया, उस स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट क्या डिनोट करेगा? एक्स बी। और वाई बी का पॉइंट कहाँ डिनोट होगा? यहाँ पे। उसका बट अगर मैं ये पॉइंट एक्स बी लेता हूँ तो वाई बी कहाँ रहेगा? वहीं पे। अगर मैं ये लेता हूँ वाई बी का पॉइंट, एक्स बी का पॉइंट, तो वाई बी कहाँ रहेगा? वहीं पे। तो ग्राफ कैसा होगा? जैसा, बिकॉज पी एस वर्सेस एक्स बी का ग्राफ क्या था? बोलो। कर्व। को बट पी एस वर्सेस एक्स, वाई वाई बी का, एक्स बी का ग्राफ क्या था? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ इज लाइक दिस। इस ग्राफ में सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, वो जो पॉइंट है वो क्या होगा? एक्स लाइन पे। पर उसी प्रेशर के लिए वाई बी का अगर मैं कॉम्पोजिशन निकालूं तो कहाँ निकालोगे? ये वाला पॉइंट।
Any doubt in this? No, sir. किसी को भी? सब ठीक है यहाँ तक? हाँ, sir. पर इस पॉइंट पे क्या हुआ? इस पॉइंट पे x इक्वल टू वाई है, x भी इक्वल टू वाई भी है। इसका मतलब उस पॉइंट को आप सेपरेट कर सकते हैं क्या? बॉइलिंग करके उस पॉइंट को सेपरेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं. लेकिन इस पॉइंट को देखो, अगर हमने XB के कॉम्पोजिशन को बॉइल किया, जो छोड़ दिया वेपर बनने के लिए, तो हमें जो वेपर मिलेंगे उसमें कॉम्पोजिशन क्या होगी? YB, एंड YB इज मोर देन XB। मतलब वेपर में किसकी परसेंटेज बढ़ रही है? B की। एनी डाउट इन दिस? No, sir. ये सर लास्ट वाला फिर से बताएं। तब सुनिएगा फिर से। ग्राफ को मैं उठा, ग्राफ समझ में आ गया कैसे? बताओ पहले। हाँ ग्राफ समझा। रुकिए, इसको मैं फिर से उठाता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ और फिर इसको समझाता हूँ और हेडिंग में डाल देता हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं सर, बताओ? दो लिक्विड के मिक्सचर को बॉईल करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है तो दो को बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने से क्या होगा? वेपर बनेगा। तो जो ज्यादा वॉलेटाइल होगी उसकी वेपर जल्दी बनेगी, जिसकी वेपर जल्दी बनेगी उसको ठंडा करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। यही होता है ना? हाँ। सेम प्रिंसिपल जो जो आपको भी मैंने अभी ओरली बताया, वो ग्राफिकल समझिए। ये सब सब रब कर देते हैं। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। समझिए अच्छे से, बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए। मैंने कोई पॉइंट लिया, मान लो यहाँ पे ये लिक्विड कॉम्पोजिशन होगा या वेपर कॉम्पोजिशन होगा? बोलो। लिक्विड का। लिक्विड, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन है। पर मैं इस लिक्विड को वेपर बना रहा हूँ, उस लिक्विड से जो वेपर बनेंगे वो कहाँ पॉइंट मिलेंगे मुझे? बोलो बोलो, कहाँ मिलेगा? कैसे ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट को? स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू. क्या? बोलो। परपेंडिकुलर डाउन। नहीं, गलत बेटा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मेरा पीएस है, उसे कंटिन्यू. तो y के रिस्पेक्ट में भी वही पीएस होना चाहिए ना। अगर पीएस सेम होना चाहिए तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करूंगा। Are you getting it? हाँ, sir. If I need same PS, because I have two equation. देखिए, PS का P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। एक्स बी एक्स ए को आप एक जैसा लिख सकते हैं, और PS इक्वल टू 1 by PS इक्वल टू वाई ए अपॉन P नॉट A। प्लीज पूछिएगा कोई दिक्कत है तो। तो सेम पीएस के लिए मुझे एक्स और एक्स भी दोनों चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ना। हाँ सर समझा समझा। ऐसा किया, कोई बात नहीं, उसको हम 10 बार समझाएंगे, अभी समझिए, आप समझेंगे कैसे क्या। डन। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेपर बनेगी यहाँ बनेगी। तो इसमें हाँ। क्या था ज्यादा? इसमें मान लीजिए, इसमें कुछ भी ज्यादा था मुझे नहीं पता, और जो वेपर बना उसमें ज्यादा क्या था? एक्स भी ज्यादा है। हाँ, sir. ज्यादा है, देख लो, चेक कर लो। इस पॉइंट पे यहाँ पे एक्स भी कुछ है, बिकॉज एक्स भी 0 से एक्स भी ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ वाई भी है, दोनों तो मोल फ्रैक्शन ही है ना। ये वाई भी यहाँ बढ़ रहा है, तो वाई भी ज्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, जो वेपर हमने जनरेट किया उसको हमने क्या कर लिया, उसको कैलकुलेट किया, उसमें तो फ्रैक्शन ऑफ बी क्या मिला? ज्यादा मिला।
तो धीरे धीरे हम कैसे बढ़ाते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कंटेनर में रखा 2 लिक्विड को बॉयल कर दिया 2 लिक्विड सेपरेट हो गया, ऐसा नहीं होता, बार बार करनी पड़ती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो 2 लिक्विड के मिक्सचर को लिया मैंने, ये बना। अब गौर करना, आज की क्लास में सबसे बड़ी लर्निंग देखो, लेफ्ट टू राइट नहीं, लिक्विड टू वेपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, लिक्विड टू, आज क्लास सबसे बड़ी लर्निंग यही है, लिक्विड टू वेपर क्या बनानी है बोलो, हॉरिजॉन्टल, horizontal line. बस गलतियां नहीं होगी। लिक्विड से हमने वेपर बनाया, क्या बन गया हमारा, वेपर बना। अब उस वेपर से अगर मैं और बढ़ाना चाहता हूँ YB, मतलब बी की क्वांटिटी और बढ़ाना चाहता हूँ, अब मैं क्या करूंगा श्रेयस, उस बी को ठंडा कर लूंगा। तो ठंडा करते ही पोजीशन कहाँ चल जाएगी बताइए, अगर मैं इसको ठंडा कर लिया तो कौन सी पोजीशन होगी, सेम YB को मैंने ठंडा कर लिया, तो YB की जो ठंडा करने के बाद जो कॉम्पोजिशन मिला वो तो लिक्विड का मिला, वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ब्लू लाइन पे या येलो लाइन पे, Blue line. ब्लू लाइन पे। ब्लू लाइन पे। बेसिकली अब तुम्हारा परपेंडिकुलर वाला बात आएगा, आप वेपर बनाए, उस जो ड्रॉप ऑफ वेपर बना उसको ठंडा कर लिया मैंने, ठंडा करते ही पोजीशन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ब्लू लाइन पे वर्टिकली। फिर हम उस लिक्विड, अब इस लिक्विड में क्या ज्यादा है, बी ज्यादा हो गया पहले से कंपेयर टू दिस लिक्विड, यहाँ पे बी लिक्विड क्या हो गई ज्यादा, Yeah. फिर मैं वेपर बनाऊंगा, पोजीशन कौन सी होगी, Horizontal. हॉरिजॉन्टल। आज ये क्लास का लर्निंग क्या है बताओ, लिक्विड टू वेपर horizontal line. हॉरिजॉन्टल, बस। अब जो नया लिक्विड कॉम्पोजिशन मिला उसमें क्या ज्यादा है बताओ श्रेयस, फिर से विनती बोलो, Mhm. again I am representing all the class if I am calling someone's name, बोलो, फिर से बी बढ़ गया। ऐसा Yes. करते करते हर बार वेपर को कलेक्ट करो, ठंडा करो करो, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। ऐसा नहीं कि 2 लिक्विड लिया, लिक्विड पानी और अल्कोहल लिया, प्रिंटर में चढ़ाया, दोनों सेपरेट हो गए, ऐसा नहीं होता, बार बार स्टेप लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद ऐसे करते करते वो पॉइंट कहाँ रीच कर जाएगा, यहाँ पे, और फाइनली क्या सेपरेट हो जाएगा बोलो, फाइनली जो वेपर मिलेगी उसमें किसकी क्वांटिटी 100% हो जाएगी, बी। लेकिन हमने एक ही तो बात की ही नहीं, एक ही बात की क्या, नहीं। कैसे बढ़ाएंगे, हम तो बी बढ़ाए ना अभी, हमने ए तो निकाला ही नहीं, ए पे कमेंट करो कोई भी, तो लॉजिकली बिल्कुल बोल सकते हैं, जो वेपर हमने यहाँ पे कलेक्ट किया, जो लिक्विड रह गया उसमें किसी क्वांटिटी ज्यादा है, Mhm. बेटा इस कॉम्पोजिशन का कोई लिक्विड था मेरे पास, उसका वेपर बनाया हमने यहाँ पे, वेपर में क्या बढ़ गया बी, अब 2 ही तो चीज है, लिक्विड है और वेपर है, अगर वेपर में बी बढ़ गया तो लिक्विड में क्या बढ़ गया बोलो, नहीं बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो मतलब नहीं समझ रहे हो, मेरे पास लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी का मिक्सचर है, इससे वेपर जो, इसी लिक्विड मिक्सचर से मैंने वेपर जनरेट किया, अब इस वेपर में कहां से कहां पहुंचा, यहीं का लिक्विड पहुंचा ना वेपर में, Yes. हाँ सर। और इस वेपर में क्या ज्यादा है, Mhm. XB से क्या ज्यादा हो गया YB, Right. तो यहाँ जितना वेपर, यहाँ जितना लिक्विड भी था उसकी कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू ए ज्यादा कहाँ पे है वेपर में, तो डेफिनेटली यहाँ पे लिक्विड ए बढ़ गया ना, Hmm. लिक्विड है और लिक्विड बी के मिक्सचर से बी ज्यादा निकल गया, तो क्या ज्यादा रह गया बोलो, Liquid. रह गया। अब इसको वेपर ठंडा करोगे तो क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिलेट बोलते हैं, Hmm. अगर कूल कर देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, वेपर ही है वो, डिस्टिलेट मतलब क्या, वेपर कॉम्पोजिशन, और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको क्या बोल देंगे, रेसिड्यू। जब हमने एक बार प्रोसेस फॉलो किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक स्टेप फॉलो किया, जिससे वेपर कलेक्ट किया मैंने, वेपर में बी की क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड मिक्सचर से बढ़ गई, जो रेसिड्यू में क्या बढ़ जाएगा, Liquid. ये बढ़ जाएगा। एनी डाउट इन दिस? No, sir. अब सिद्धांत उसी लिक्विड मिक्सचर को जो जिसमें ए बढ़ चुका है, फिर से हमने वही काम किया, फिर से वेपर में क्या बढ़ जाएगा बी, तो लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी के मिक्सचर में क्या बढ़ जाएगा फिर से ए,
ऐसे बार बार करते रहेंगे तो क्या किसमें ये बढ़ जाएगा? रेसिड्यू में? एनी डाउट इन दिस? No, sir. नो सर, तो रेसिड्यू में किसकी क्वांटिटी बढ़ती है? एक ही, एक ही या लेस वॉलेटाइल। लेस वॉलेटाइल? बिल्कुल लॉजिकल है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं ये सब नहीं समझाऊंगा तो अगले 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगी। लेस वॉलेटाइल लिक्विड, concentration of less volatile liquid increases. Distillation में concentration of more volatile liquid. ये कहानी तब होगी जब कोई इंटरमीडिएट पोजीशन लेंगे। अगर मैं बोलूंगा मेरे पास कॉम्पोजिशन ये वाली है, इसको हम बॉयल कर रहे हैं, तो रेसिड्यू में किसके क्वांटिटी ज्यादा होगा? रेसिड्यू या डिस्टिलेट में किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी? फट से आंसर दो श्रेयस, वेट कर एक ही। गलत, दोनों में सेम ही रहेगा। प्योर लिक्विड है ना वो। दिस पॉइंट इंडिकेट्स व्हाट? बोलो, प्योर लिक्विड है। प्योर वो लिक्विड किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, मतलब किसके कंपैरिजन में पूछा था? दोनों में सेम ही होगा ना। कॉन्सेंट्रेशन बेटा, क्वांटिटी मेरा गलत वर्ड था। कॉन्सेंट्रेशन, वो तो हमेशा मेरा गलत वर्ड पिक कर लेते हो, समझ गए बेटा? हाँ अगर ये प्योर लिक्विड है श्रेयस, उसको मैं बॉयल करूंगा तो ऊपर भी लिक्विड यही रहेगा ना, एक ही लिक्विड है। तो हाँ उसको सेपरेट कर पाओगे क्या आप? नहीं, पर इस नहीं, पॉइंट वो पे मैथमेटिकली ऑब्जर्व करिए, इस पॉइंट में मैथमेटिकली क्या है? x इक्वल टू क्या है? y है। हाँ जिस भाई पॉइंट पे x इक्वल टू y हो, जिस पॉइंट पे xb इक्वल टू yb हो, उसको आप सेपरेट कर पाएंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? समझिए, जब मैं इस नहीं। पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ कट करेगा, और इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो कहाँ कट करेगा? वहीं पे। हेलो, हाँ ये क्लैरिटी मिलेगी? नहीं बताओ पहले। अब अगर ग्राफ ऐसा होता श्रेयस, जो जो अभी तक हमने बताया नहीं है, अगर ग्राफ ऐसा होता, सोचना, ये लिक्विड का ग्राफ है मान लो, और ये वेपर का ग्राफ है, ठीक है, यही है ग्राफ हमारा। ये लिक्विड का ग्राफ है, ग्राफ ऐसा होता बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो कौन से पोजीशन को आप सेपरेट नहीं कर पाते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? ये पॉइंट तो सेपरेट हो ही नहीं सकता क्योंकि प्योर लिक्विड है। ये तो मिक्सचर है, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये लिक्विड कॉम्पोजिशन, ये वेपर कॉम्पोजिशन, और ये मिक्सचर। अब बोलो ना ऐसा ग्राफ कैसे बना दोगे? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते लॉजिकली, हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। अगर ग्राफ, मैंने आपको कहा ऐसा ग्राफ दिया मैंने आपको, इस पूरे प्लॉट में किस 3 पॉइंट के कॉम्पोजिशन को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे? एक प्योर कंपोनेंट को, और दूसरा इस कंपोनेंट को। एनी डाउट इन दिस? नो सर। सबको डेफिनेटली शो वो कर पाएंगे। बीच वाले को क्यों नहीं कर? फिर से वही क्वेश्चन, इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग वेपर का पोजीशन कौन सा होगा? ये वाला। और इस पॉइंट को कोरिस्पॉन्डिंग प्रेशर कौन सा, पोजीशन कौन सा होगा? वही होगा ना। इस एक्स ए के कोरिस्पॉन्डिंग वाई ए कहाँ है? यहाँ है वाई ए। हाँ और इस एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग वाई ए कहाँ है? वही है ना। ओके हाँ दोनों पॉइंट मैच कर गया ना उसी पॉइंट पे। इस हाँ पॉइंट पे पीएस ये है, उसी पॉइंट पे पीएस वाई है, वाई ए कोरिस्पॉन्डिंग और एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग पीएस निकाल लिया हमने। जब दोनों पॉइंट सेम ही है, जब लिक्विड बॉयल करोगे एक्स का, तो ऊपर क्या मिलेगा? वाई ए। और दोनों है क्या? बोलो। इक्वल। दोनों इक्वल है। तो एक ऐसा लिक्विड कॉम्पोजिशन भी जनरेट होता है एट अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल प्रेशर। एट अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल प्रेशर एक ऐसा लिक्विड कॉम्पोजिशन जनरेट होता है जिसको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे? एज़ोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अभी कुछ पूछना मत, समझना पहले एक बार और। जब मैं ये लिक्विड लेता हूँ, वेपर कौन सा बनता है? ये। उसी को ठंडा करता हूँ तो ये लिक्विड बनता है।
फिर वेपर बनाऊंगा तो ये मिलेगा, ऐसा चलते जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगी? पी नॉट बी मिलेगी। पी नॉट बी कहाँ मिलेगी बोलो? डिस्टिलेट में। हाँ और ये कहाँ मिलेगी? रेसिड्यू पक्का? कोई डाउट इसमें किसी को भी? नो सर अब आप इस ग्राफ पे ध्यान दो, ये बहुत गंदा ग्राफ हो गया, थोड़ा दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। सब साफ साफ बनाऊंगा फिर से। ये मेरे पास ग्राफ है, मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, मेरा कोई कॉम्पोजिशन ये है, इससे मैं, ये लिक्विड कॉम्पोजिशन है, एक्स है, ये डेफिनेटली मेरा वाई है। इसका लिक्विड कहाँ बनेगा, वेपर कहाँ बनेगा? यहाँ पे। आज की लर्निंग क्या है? लिक्विड टू वेपर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ठंडा करोगे कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे। इसका फाइनल फाइनल पॉइंट कौन सा मिलेगा? ऐसा यही रुक जाएगा ना वो? बोलो, हाँ ये क्या बन जाएगा फाइनली? डिस्टिलेट। डिस्टिलेट और ये क्या बन जाएगा? रेसिड्यू तो जब एजोट्रोपिक के लेफ्ट पार्ट, मतलब ये कौन सा पोजीशन था बेटा? पी नॉट है, ये एक्स इक्वल टू क्या था? 1। 1 और एक्स बी इक्वल टू क्या था? 0। यहाँ पे एक्स बी क्या था? 1। ये पी नॉट बी था। ये ग्राफ में सब कुछ था। अगर आप एजोट्रोपिक के लेफ्ट पार्ट में कोई लिक्विड कॉम्पोजिशन लोगे और उसको सेपरेट करने जाओगे तो डिस्टिलेट में क्या मिलेगी फाइनली? एजोट्रोपिक क्या मिलेगा? क्योंकि बढ़ रहा है ना एक्स बी धीरे धीरे, और वो फाइनली इस पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, बिकॉज इसको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बोलो, एजोट्रोपिक। और जो रेसिड्यू है उसमें क्या बढ़ेगा? ये बढ़ता जाएगा, फाइनली आपको ये मिल जाएगा। तो लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ, इस पॉइंट पे, तो डिस्टिलेट क्या मिलेगा? बी का। और रेसिड्यू किसका मिलेगा? एजोट्रोपिक। एजोट्रोपिक का। तो बेसिकली दिस ग्राफ इज कंपोज्ड ऑफ टू सच ग्राफ। जो एक ग्राफ हमने ऐसा बनाया, ऐसा ही दो ग्राफ बना हुआ है, जिसमें ये प्योर कंपोनेंट है, ये प्योर कंपोनेंट है, ये प्योर कंपोनेंट है। और दिस कैन बी आल्सो ट्रीटेड एज व्हाट? Pure component. It is not pure component, but it can be treated as a pure component because it cannot be separated by fractional distillation. तो such graph जहाँ पे intermediate किसी position पे x equal to y बन जाए, तो that position is known as isotropic mixture and that cannot be separated completely. Before that and after that, अगर कोई composition को आप separate करना चाहते हैं, तो अगर isotropic composition से कम composition है, उसको separate करना चाहेंगे, तो distillate क्या मिला मुझे? Azeotropic। और रेसिड्यू क्या मिला? बोलो। ए। इन दिस केस एटलीस्ट मेरे पास। सेकंड वाले केस में अगर मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ एजेओट्रोपिक मिक्सचर से, मुझे डिस्टिलेट क्या मिलेगा? बी। और रेसिड्यू क्या मिलेगा? एजोट्रोपिक। अभी तक हमने ये वेपर प्रेशर ग्राफ बनाया था बेटा, वेपर प्रेशर ग्राफ बनाया। अब वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा। थोड़ा बहुत समझ में आया श्रेयस? हाँ सर। ठीक है, और एक्सप्लेन करूंगा मैं वो सर हम जब कंडेंस करते हैं उसको, तब तो हम वर्टिकली जाते हैं ना? क्या क्या बॉईल कर रहेंगे तब हॉरिजॉन्टल जाएंगे और कंडेंस कर कंडेंस कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। पर वो वैसा क्यों है? मतलब लॉजिकल है ना। देखो, वो तो ग्राफ दे रहा है आपको। ग्राफ में क्या है? वेपर प्रेशर वर्सेस लिक्विड कॉम्पोजिशन, वेपर प्रेशर वर्सेस वेपर कॉम्पोजिशन। अब अगर आपका वेपर है तो उसकी पॉइंट क्या होगी? कर्व पे होगी। हाँ लिक्विड कॉम्पोजिशन तो स्ट्रेट लाइन पे होगी। हाँ जो वेपर हमने जनरेट किया, अगर वो उसको ठंडा कर लिया, तो उस ठंडा करने के बाद वो तो लिक्विड कॉम्पोजिशन बन गया ना। उसकी पोजीशन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन वाले पे। तो वर्टिकली शिफ्ट करोगे ना, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन वी आर नॉट चेंजिंग। उस वेपर कॉम्पोजिशन को अब मैं लिक्विड बना दिया हूँ, अब लिक्विड से नया वेपर बनेगा ना, वो लिक्विड प्रेशर तो नहीं लगाएगा ना, लिक्विड नहीं लगाएगा ना, लिक्विड से जो नया वेपर बनेगा वो प्रेशर लगाएगा ना। हाँ हाँ तो जो लिक्विड कॉम्पोजिशन है वो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। अब उस स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नया वेपर बनेगा वो कहाँ लाई करेगा? कर्व पे।
हाँ ये क्लियर है? एक बार और से समझाता हूँ, रुको, और एक और पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। एक ग्राफ समझ में आ गया था? स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है? लिक्विड लिक्विड, कॉम्पोजिशन। और नीचे क्या है? वेपर। अगर मैं इसी को वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन है, बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन बना लूं, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा। क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसकी वेपर प्रेशर क्या? बोलो, कम। कम। अब जितना बॉयल करोगे उतना वेपर बनेगा, तो डेफिनेटली ऊपर का ग्राफ किसका है? वेपर का, नीचे का लिक्विड का। तो आप बोले इसमें स्ट्रेट लाइन कौन सा है? इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, दोनों ही कर्व है। स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन सिर्फ आइडियल केस के लिए है, राउल्ट्स लॉ के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो जब बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस ड्रॉ करोगे तो दोनों ही क्या होंगे? कर्व हो जाएंगे। समझ गए? हाँ सर। हेलो सब। आज की लर्निंग सिर्फ छोटी सी है। क्या लर्निंग है? ग्राफ हमारा गलत नहीं होगा, पोजीशन आपका गलत नहीं होगा। लेफ्ट लिक्विड टू वेपर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसी वेपर में अगर मैं बोलूं मेरे पास लिक्विड कॉम्पोजिशन ये वाली है श्रेयस, ये वाली, मुझे इसको सेपरेट करना है। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसको कहाँ मिलेगा? रेसिड्यू में मिलेगा या डिस्टिलेट में मिलेगा? हायर बॉइलिंग पॉइंट है तो लेस वॉलेटाइल होगा, डिस्टिल रेसिड्यू मिल जाएगी ना। हम्म तो अगर मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करूं इस लिक्विड को, तो उसको मैं क्या करूंगा? वेपर बनाऊंगा। वेपर का पोजीशन कहाँ पे होगा? उसी लिक्विड के मिक्सचर के कॉरेस्पॉन्डिंग। इस लिक्विड मिक्सचर के कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर कहाँ मिलेगी? यहाँ, और यहाँ हाँ मिलेगा। उसको ठंडा करेंगे, लिक्विड क्या बनेगा? ये वाली। हम्म क्योंकि ये वेपर थी पहले, उसको ठंडा कर लोगे तो वो पोजीशन नहीं रहेगी ना उसकी। उसकी पोजीशन कहाँ चल जाएगी? लिक्विड वाले ग्राफ में। फिर वेपर बनाएंगे इसका, कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे। जैसे मैंने कहा आपको कि आज की क्लास की लर्निंग सबसे बड़ी यही है, दिस। अब नेक्स्ट, ऐसे चलता जाएगा। ये ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है? बी की तरफ जा रहा है कि नहीं बताओ? और ये क्या है? मोर वॉलेटाइल। जिसकी तरफ एरो बनाते जाएंगे वो एरो क्या होगा? मोर वॉलेटाइल की तरफ। तो मोर वॉलेटाइल मतलब क्या होगा? डिस्टिलेट। तो रेसिड्यू क्या हो जाएगी? ए ए। इस केस में वही होगा, वो दो ही लिक्विड है और बीच में मीट नहीं कर रहा ग्राफ। मीट कर जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड करनी पड़ेगी सिस्टम को। आएंगे उस पर। सर। हाँ वो सर। जो कंडेंसेशन वाली लाइन थी ना, मतलब वेपर से लिक्विड बनाने का, जी। ठंडा करने की हाँ हाँ, बाद, मैंने तो लाइन नहीं बनाया, उसमें देखो उसको उसको लाइन बनाना नहीं कहते। हम उस वेपर को वर्टिकल। ठंडा कर ले, सुनो, उस वेपर को ठंडा कर ली, तुम्हारे परेशानी में समझता हूँ। उस वेपर को ठंडा कर लिया, वो ठंडा हो गया ना, अब वो लिक्विड बन हाँ गया, नया लिक्विड बन गया। तो नया लिक्विड का पोजीशन क्या होगा? लिक्विड ग्राफ पे होगा ना। हाँ अब उस लिक्विड के कोरिस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगी वो यहाँ होगी, उसी हाँ, वो प्रेशर के प्रेशर कोरिस्पॉन्डिंग कम वेपर का हुआ, होगी। हाँ, इनिशियल से प्रेशर कम हुआ, तो फ्रैक्शन वही क्यों रहा? तुम एक मतलब बात समझ, तुम्हारा दिमाग कुछ और अटक गया है। वेपर बना वेपर, और प्रेशर कौन लगा रहा है? यही वेपर लगा रहा है। हाँ, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग पीएस कहाँ पे है? यहाँ पे। ऊपर है। एनी डाउट इन दिस? नहीं। और वेपर में क्या बढ़ चुका है? बी बढ़ चुका है। हाँ क्लियर यहाँ तक? हाँ हाँ हेलो। अब जब मैंने इसको ठंडा कर लिया, नहीं तो गलत है, ग्राफ ही गलत है ना। ये ग्राफ है ना हमारा, वो बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ था। हाँ देखो, ये मेरा एक्स बी है, ठीक।
और इस XB के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर कहाँ पे है? यहाँ पे प्रेशर है। और इस प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर कहाँ पे है? सेम। अब यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं नहीं कोई डाउट नहीं है। अब मैं इस वेपर को ठंडा कर लिया, ठंडा कर लिया, हाँ हाँ सर। तो वो जो वेपर को ठंडा कर लिया, अब वहां वेपर है ही नहीं। वहां वेपर है क्या बताइए पहले? नहीं है। जो वेपर PS प्रेशर लगा रहा था उसको मैं ठंडा कर चुका हूँ, अब तो वेपर है ही नहीं। अब नया वेपर जनरेट होगा, और नए वेपर में क्या किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? XB की क्वांटिटी ज्यादा है, B की क्वांटिटी ज्यादा है ना नए वेपर में? बोलो। हाँ सर। जब नए वेपर में जो वेपर बना, जो ठंडा किया मैंने लिक्विड, तो नया लिक्विड बना, उसमें वेपर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, B की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो पोजीशन कौन सी होगी? ये लाइन कोई प्रोसेस नहीं है, ये पॉइंट बस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इस उसमें लिक्विड को YB कांस्टेंट कैसे रहा? बेटा तुम्हारे पास वेपर है, उसको ठंडा करोगे, जो वेपर कॉम्पोजिशन होगा वही लिक्विड में होगा ना। हाँ ये प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस है कि मैंने इसको बॉयल किया तो ये वेपर बना बना इस वेपर में किसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई? B की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। अब उस वेपर को मैंने ठंडा कर लिया, सेम वेपर को ठंडा कर लिया, तो प्रोसेस नहीं है। हाँ मेरे हाँ पास कंटेनर के अंदर वेपर्स है बेटा, एक से A और B का, उसको मैंने ठंडा कर लिया, तो वही कॉम्पोजिशन रहेगा ना। हाँ तो वो जो कॉम्पोजिशन रहेगा उसकी पोजीशन कहाँ हो जाएगी? वेपर में तो नहीं रहेगी, ठंडा कर चुका हूं मैं उसको। हाँ श्रेयस स्मार्ट है, वो कॉम्पोजिशन लिक्विड में हो जाएगा। लिक्विड में हो जाएगी, तो पोजीशन वहां शिफ्ट कर जाएगी। ये लाइन की प्रोसेस नहीं है। हाँ 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 समझा। सारा वेपर अब लिक्विड बन चुका है, तो उसकी पोजीशन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? लिक्विड वाले पे, बट कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? सेम। तो वर्टिकली शिफ्ट करेंगे तभी तो कॉम्पोजिशन सेम रहेगी। हाँ हाँ ये जो वेपर था वो क्या बन गया? लिक्विड। तो लिक्विड बन गया। अब उस लिक्विड में क्या ज्यादा है? B ज्यादा है, B तो प्रेशर भी क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा, बिकॉज B ज्यादा वॉलेटाइल था। अब उस लिक्विड की कॉरेस्पॉन्डिंग नया वेपर जो बना वो कहाँ पे होगा? ये वाली। हाँ अब ये वेपर है, फिर ठंडा करूंगा उसको मैं, फिर से नया लिक्विड बनेगा, उसमें प्रेशर क्या है? और ज्यादा। और ज्यादा। बिकॉज वेपर्स में जो मैं ठंडा करता जा रहा हूँ वेपर को, उसमें क्वांटिटी ऑफ B ज्यादा बढ़ रही है, मोर वॉलेटाइल लिक्विड ज्यादा बढ़ रही है, हेंस द परसेंटेज ऑफ B इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है। एनी डाउट? नो। तो इस लाइन में हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? मोर वॉलेटाइल पे ही काम कर रहे हैं। तो रेसिड्यू में ऑटोमेटिकली क्या बचता जाएगा? A। तो अगर रेसिड्यू पे काम करते हैं तो ये बड़े बढ़ता जाएगा। सिंपल। अब सेट हुआ दिमाग में? हाँ सर। तुम्हें वो स्टेप प्रोसेस लग रहा था, प्रोसेस नहीं था, वो बस पोजीशन वहां से वहां शिफ्ट हो गई। एज़ोट्रोप्स आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल में ही हो सकता है, ऑफ अ स्पेसिफिक कंपोजिशन एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, एट अ पर्टिकुलर external pressure, showing large deviation which boils at a constant temperature, as the vapor phase composition is same as liquid phase composition. That is, वैसा composition जिसपे XA इक्वल टू YA हो जाए और XB इक्वल टू YB हो जाए, तो वैसे composition को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकली azeotropic mixture। अब देखिए ग्राफ देखिए, minimum boiling azeotrope formed by solution showing large positive deviation, large positive deviation। पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ बनवाया था आपको ऐसा, नेगेटिव में क्या बनाया था? ऐसा, है ना? हाँ तो यही ग्राफ जो ऐसा बना रहे हैं वो क्या है? पॉजिटिव। ये हमारा लिक्विड का ही था। तो किसी पॉइंट पे आप देख रहे हो वहां पे क्या मिल रहा है? एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन मिल रहा है।
एग्जांपल दिया उन्होंने C2H5 plus H2, so रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट, और 95.6% V/V होता है। तो C2H5 plus H2OH, C2H5OH plus H2O का एग्जांपल किसका एग्जांपल है? पॉजिटिव डेरिवेशन का एग्जांपल है। पॉजिटिव में वेपर प्रेशर क्या हो जाती है एक्सपेक्टेड से ज्यादा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बोलो। कम। कम। अब देखो मैं यहीं पे एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मैं इस लिक्विड को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस लिक्विड कॉम्पोजिशन को, लिक्विड मिक्सचर है वो, है ना? क्या इस पॉइंट पे x=1 है? नहीं। नहीं। क्या x=1 है? नहीं। तो लिक्विड मिक्सचर हो गया ये। अगर मैं चाहता हूँ इसको सेपरेट करना तो मैं पहले क्या ड्रॉ करूंगा? हॉरिजॉन्टल। आज की क्लास की लर्निंग सिर्फ इतनी ही है, लिक्विड से वेपर हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वेपर नया मिला मुझे, उसी वेपर को ठंडा कर दूंगा तो कौन सा लिक्विड मिलेगा? वर्टिकल वाला। हाँ। फिर वेपर बनाऊंगा तो कौन सा मिलेगा? ऐसे करते करते डिस्टिलेट में क्या मिलेगा फाइनली? बोलो। एज़ोट्रोपिक। एज़ोट्रोप। और रेसिड्यू में क्या मिलेगा? ए। ए। मतलब इस लिक्विड मिक्सचर को सिद्धांत हम कंप्लीटली बी और ए में सेपरेट कर पाएंगे क्या? नहीं। किसमें सेपरेट कर पाएंगे? ए में और एज़ोट्रोपिक कंपोजिशन में। सिमिलरली इफ आई टेक दिस कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड नहीं है, ये तो वेपर है। लिक्विड इसको सेपरेट करने के लिए जाएंगे, किधर लाइन ड्रॉ करूं? हॉरिजॉन्टल लाइन। किधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं? कहां चले गए सब? हाँ यही तो है। किधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं बताओ? ठीक सोच पा रहे हैं सिद्धांत? हाँ सर। तुम इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ना। किधर ड्रॉ करो से क्या मतलब? ड्रॉ कर दो हॉरिजॉन्टल लाइन। वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ कट किया? वेपर को। तो वेपर को कट किया तो लाइन किधर ड्रॉ करोगे? लेफ्ट को। लेफ्ट को। इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा आपको लिक्विड से वेपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अब वेपर तो राइट में है नहीं, यही होगा ना? हाँ सर। अब तो आप बोलोगे लेफ्ट क्यों ड्रॉ करोगे सर? बताओ क्यों लेफ्ट ड्रॉ करोगे? लेफ्ट ही ड्रॉ करूंगा ना। ये जो एज़ोट्रोपिक कॉम्पोजिशन है, ये बी नॉट से भी, बी से भी क्या है? ज्यादा वेपर प्रेशर वाला। जिसका ज्यादा वेपर प्रेशर, तो सुनो, जिसका ज्यादा वेपर प्रेशर, वेपर में उसी का कॉम्पोजिशन क्या? ज्यादा। किसका प्रेशर ज्यादा है? बी का प्रेशर ज्यादा या एज़ोट्रोपिक का प्रेशर ज्यादा है? एज़ोट्रोपिक का। और वैसे भी इतना दिमाग नहीं लगाऊं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, वेपर वो कहाँ कट कर रहा है? ये इस पॉइंट पे। तो डेफिनेटली मैं किधर मूव करूंगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। फिर उसको ठंडा करूंगा श्रेयस, क्या मिलेगा? ये उसी के करस्पॉन्डिंग वाला लिक्विड। तो यहाँ भी रेसिड्यू क्या मिलेगी? बी। और डिस्टिलेट क्या मिलेगा? एज़ोट्रोप। बिकॉज़ एज़ोट्रोप की जो प्रेशर है, एज़ोट्रोप का जो वेपर प्रेशर है इस ग्राफ में, दोनों से क्या है? ज्यादा। उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम। तो डिस्टिलेट में क्या मिलेगा? एज़ोट्रोप। और रेसिड्यू में क्या मिलेंगे? ए एंड बी। एनी डाउट इन दिस? पक्का? और इस पॉइंट पे x इक्वल टू क्या है? सबसे प्यारा डेफिनेशन एज़ोट्रोपिक का, द कंपोजिशन एट व्हिच x इक्वल टू व्हाट? y। अब इससे आसान तो नहीं पढ़ा सकता। x इक्वल टू y। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब वेपर प्रेशर कम हो गई कि ज्यादा हो गई उस कंपोजिशन पे? कम हो गई। कम तभी होगा जब नेगेटिव डिविजन होती है। तो फॉर्म बाय सॉल्यूशन सो इन लार्ज नेगेटिव डिविजन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन बोथ द कंपोनेंट, वेपर प्रेशर इज लेस देन बोथ द कंपोनेंट। ये ग्राफ है। अब मुझे आप ही बताओ, कोई भी लिक्विड का कंपोजिशन पिक करो, कोई भी लिक्विड का कंपोजिशन, मुझे बताओ रेसिड्यू क्या मिलेगी और डिस्टिलेट क्या मिलेगा? और ये पिक कर लो, ये पिक कर लो। रेसिड्यू क्या मिलेगा, डिस्टिलेट क्या मिलेगा? सिंपल एक पॉइंट कमेंट कर सकते हो बेटा, मोर वोलेटाइल लिक्विड विल बी प्रेजेंट इन व्हाट? डिस्टिलेट। एंड लेस वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट इन व्हाट? रेसिड्यू। छोटा सा कमेंट कर लीजिए। दोनों में रेसिड्यू एज़ोट्रोपिक मिलेगा, बिकॉज उनका जो बॉइलिंग पॉइंट दोनों से क्या है? ज्यादा। ज्यादा। से क्या है? कम है।
आसान है कि नहीं बताओ? हाँ ये सब टफ सेक्शन माने जाते हैं सॉल्यूशन के, बहुत ही टफ माने जाते हैं। आप देखो कितना टफ है, वेरी टफ। लिक्विड से क्या बनाऊंगा मैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर तो कट नहीं करेगा, नहीं इधर तो कट करेगा ना, हम्म ऐसे 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 चलता जाएगा। तो डिस्टिलेट में क्या मिलेगा? बी। बी अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ ऐसे ऐसे टाइम पास करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? ए और रेसिड्यू में क्या मिलेगी? एज़ोट्रोपिक बेसिकली दिस सच ग्राफ बेटा, इसको दो हम आइडियल सॉल्यूशन वाले ग्राफ से कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, दो ग्राफ का मिक्सचर ले सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हम क्या देखेंगे? x इक्वल टू y ये है, मतलब एज़ोट्रोपिक मिक्सचर विल बिहेव लाइक व्हाट? प्योर लिक्विड। यही है ना? अगर सब जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, एक मिनट। Azeotropic composition can be treated as what? Pure liquid. On this graph can be composed of two same graph discussed for what? Ideal solution. कोई डाउट? नहीं सर। इसमें ग्राफ बनाइए आप लोग नोटबुक में, ये दोनों ग्राफ बना लीजिए मेरे सामने, बेटर होगा। ये दोनों ग्राफ बनाइए, और जैसे मैंने फर्स्ट में डिस्कस कर दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट लिक्विड का पॉइंट चूज करेंगे, किधर किधर ड्रॉ करें? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस लिक्विड का वेपर कहाँ बनेगा? यहाँ पे। इसको ठंडा करोगे तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे, है ना? ऐसे। ये कौन सी पोजीशन है? बी की। ये कौन सी पोजीशन होगी? ए की। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रोपिक क्या है? बहुत ज्यादा दोनों से, तो ये बी क्या बनेगा? डिस्टिलेट। और ये कौन सा बनेगा? प्लीज ड्रॉ करिए, ड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड, देखो क्या निकल गया पूरा टाइम स्लैश सिद्धांत। देखो कुछ पढ़ाया हमने? कुछ नहीं पढ़ाया आपको आज। 9 टाइम निकल जाता है ऐसे छोटी छोटी चीजों पे। इसको मैं स्किप कर सकता था, क्वेश्चन बनाने में एक भी तकलीफ नहीं आती आपको, बुकलेट में एक भी तकलीफ नहीं आती, पर ये क्लैरिटी मिल गई आपको। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे फॉर्म्स व्हाट? एज़ोट्रोपिक मिक्सचर at intermediate position x equal to what? y. Understood everyone? हाँ सर। हाँ सर। और एनसीईआरटी में दो एग्जांपल याद करने हैं। ये HNO3 आपको याद ही होगा, ये नेगेटिव डिविजन शो करते हैं। नेगेटिव क्यों शो करते हैं? बिकॉज HNO3 split into ions, attractive force increases, so it shows what? Negative deviation. दो एग्जांपल आपको जानने हैं दोनों परसेंटेज के साथ। हाँ, ये सब पॉइंट पढ़ना, सब पॉइंट पढ़ लो एक बार। An isotropic mixture cannot be separated by distance. अब उस तरह ग्राफ नहीं बनाता, इसलिए मैंने समझाना पड़ा आपको। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब आइए, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिख देते हैं। Properties of a solution containing non-volatile solute which depend only on the number of solid particles are known as qualitative properties. Only on the number of solid particles, नंबर पे डिपेंड करते हैं। एक छोटी सी चीज समझिए, फिर आगे का पार्ट हम लोग हैंडल करेंगे। कुछ नहीं है, चार छोटे छोटे फॉर्मूले उसको अप्लाई करनी है, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। एक प्योर लिक्विड है, ये सरफेस है, तो सरफेस पे भी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1। एनी डाउट? नहीं। अब मैंने क्या किया बेटा, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। प्योर लिक्विड प्लस नॉन वोलेटाइल का मतलब जो वेपर नहीं बनाता। यहाँ पे क्या हो जाएगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कम। एनी डाउट? नहीं। तो कहां से ज्यादा वेपर जनरेट होगी? यहाँ के लिक्विड पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो कोई भी लिक्विड वेपर बन सकता है, और यहाँ के जो सरफेस पे क्या रहेगा? सिर्फ लिक्विड रहेगा या सॉलिड पार्टिकल्स भी रहेंगे? नॉन वोलेटाइल के भी रहे। नॉन वोलेटाइल भी रहेगा, तो कोलाइड करेंगे। नॉन वोलेटाइल का भी एनर्जी बढ़ सकता है, पर वो वोलेटाइल है ही नहीं, ऊपर जाने तो क्या होगा? तकलीफ होगी, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड्स है वो कम है,
एज कम्पेयर टू दिस। तो कहाँ पे वेपर ज्यादा जनरेट होगी? लेफ्ट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिलाने से व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर? डिक्रीज। डिक्रीजेस। अब समझिएगा फिर से, मान लो ये पी नॉट ए है और ये मान लीजिए पी एस है, और पी एस का फॉर्मूला क्या था बताओ? P naught is पी नॉट एक्स ए प्लस P naught BX. पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैं बोलूंगा बी, जो नॉन वॉलेटाइल बी है, तो ये लिक्विड ए है, बी नॉन वॉलेटाइल है, तो पी नॉट बी क्या हो जाएगी? 0। ये पार्ट 0 हो गया। तो पी एस इक्वल टू क्या हो गया? P naught naught X. और एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। तो पी एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? लेस देन P naught। तो पी एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? P naught है तो सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या होती है? कम। कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 11। आधा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर पीएस का फॉर्मूला कैसे निकालें? तो पीएस का फॉर्मूला ऐसे निकलता है, पहला पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट? सॉलिड व्हिच डज नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स। सॉलिड्स आर नॉन वॉलेटाइल। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट ए प्लस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बी। पीएस इक्वल टू क्या लिखा? पीए प्लस पी, पी भी 0 हो गया, सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है। तो पीएस इक्वल टू पीए, पीए इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, एक्स ए लेस देन 1, तो पीएस भी क्या होगा? लेस देन पी नॉट ए। लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर, तो एक्चुअल लिक्विड क्या था? पी नॉट। सॉल्यूशन का क्या होगा? पीएस। तो लोअरिंग कितनी हो गई? पी नॉट माइनस पीएस। इससे आसान फॉर्मूला क्या ही जनरेट होगा? रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव कैसे कंपेयर करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। पी नॉट ऑन पी नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एक्स बी। वो कैसे आएगा? पी नॉट माइनस पी एस क्या था? अच्छा, पी नॉट माइनस इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स से क्या है? एक्स बी। और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। प्रूव दैट पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस शुड बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। प्रूव करिए इसी से। इसे मत पढ़ना, जितना पढ़ाया गया उतना, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं, नो डायल्यूट सॉल्यूशन। प्रूफ करना है प्रूफ आपको करना है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। सर अगर बी होता कॉम्पोजिशन हुआ? में तो क्या? मतलब ऐसा एनालिटिकली अगर नहीं, B एनालिटिकल होता नहीं, मैथमेटिकली सीरियस। क्या बच्चा से बात कर रहे हो? इससे तुम्हें ये प्रूफ करना है कि मैथ्स का क्वेश्चन है बस। बी और ए तो है ही, उस मैथमेटिकल इक्वेशन को तुमको इसमें मॉडिफाई करनी है बस। मैथमेटिकली कॉम्पोनेंट और डिपेंडेंट जो जो आप जानते हैं, कुछ केमिस्ट्री नहीं लगानी है। मैथ यू आर हैविंग दिस इक्वेशन, प्रूव दिस इक्वेशन, बस इतना ही क्वेश्चन है। बहुत आसान है, बेसिक मैथमेटिक्स। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, बाय डेफिनेशन सही है, लेकिन उसी से तुम्हें ये इक्वेशन लानी है। आया किसी को? हाँ सर, क्या करना पड़ा? वो P naught minus PS P naught से माइनस करना है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू अपने पास क्या है?
NB upon NB upon NA plus NB. तो तो अब NA reciprocal कर या अलग अलग मेथड है, जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है सिर्फ। अब इसमें तो दो तरफ -1 कर लो। क्या कैंसिल हो जाएगा? P0 PS अपॉन क्या हो गया? P naught minus PS. this फिर से रेसिप्रोकल ले लो, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं, सिंपल बेसिक सा मैथ्स। ठीक है, ये हम किसी के लिए लगा सकते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन Na plus Nb क्या होगा? Na बिकॉज़ सॉल्यूट कम है तो Nb अपॉन Na आ जाएगा इक्वेशन। तो P0 minus PS upon P0 equal to NB upon Na for dilute, but P0 minus PS upon PS will be applicable for all. Above relation can be used to calculate molecular mass of non-volatile solute. Obviously, WB upon MB upon WA MA. ठीक है, एक और देखिए छोटा सा चेंजेस। For dilute solution, Na plus Np, Na था, तो P0 minus PS upon P0 should be equal to Nb upon Na plus Nb approximately Nb upon Na. कोई डाउट? अब Nb upon Na को P0 minus PS upon P0 equal to Nb upon Na लिखा। Can I multiply by molar mass of A and divide by molar mass of A 1000 upon 1000? What is Ma? Molecular weight of A. तो कुछ सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। P0 minus PS upon P0 equal to Nb into 1000 upon Na into Ma into Ma upon 1000. What is the expression in bracket? अच्छा हाँ बोलिए, M क्या है? मोलालिटी हो गई ना। Nb number of moles of solute into 1000 upon Na into Ma mass of solvent. तो P0 minus PS upon P0 is proportional to what? Molality. और Ma upon 1000 तो कांस्टेंट है। At constant temperature, P0 is what? Constant. So P0 minus PS is proportional to what? M. M का definition? Number of moles of Solute. solute. यहाँ पे solute नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? Solute particle per kg. per kg सॉल्व। Per kg का मतलब solvent का amount fix है। If molality will change, number of solid particles will change. तो RLP also what? बोलो changes, है ना? हाँ sir. तो डेफिनेशन जस्टिफाई हुआ। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली पता है कि अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट T0 बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर पॉजिटिव, सभी क्या है? पॉजिटिव होते हैं। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? सॉल्यूशन की बढ़ जाएगी, तो TB इज मोर देन T0 बी। तो डेल्टा TB क्या होगा? डिफरेंस। डेल्टा TB इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा है? KB इंटू M। KB क्या है? कांस्टेंट, और M क्या है? मोलालिटी। तो डेल्टा TB ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू व्हाट? M।
उसको मैं ग्राफिकली प्रूव करूंगा, पर अब आज क्लास में आप याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए आप। डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिखा हमने, केबी इंटू एमबी अपॉन डब्ल्यू एन के जी, लिख सकते हैं ना मोलालिटी को, हाँ ये फॉर्मूला हो गया। और ये ग्राफ समझा दूंगा, समझा क्या समझ सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल ग्राफ है। 1 का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्योर सॉल्वेंट लिया तो प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड का वेपर प्रेशर और वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ लिख दिया मैंने। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जो वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, उसी को क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। पर जब हम कुछ मिला देंगे तो उसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। हाँ तो कम हो जाएगा। अब उसका चाहता हूँ मैं वेपर प्रेशर बढ़ाना एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, तो उसको फिर ग्राफ एक्सटेंड करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। वही पॉइंट यहाँ दिखा हुआ है। तो दिस डिफरेंस इज व्हाट, difference in boiling point, this difference is what, difference in vapor pressure, yeah, change in pressure when you add something. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो डेल्टा केबी है, अगर m1 हो जाएगा तो केबी किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टीबी के। इट रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन मतलब बढ़ना ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, केबी ऑफ वाटर 0.52 होता है। अब यूनिट क्या होगी बताओ केबी की, केबी का यूनिट क्या होगा, सोचो, केल्विन पर मोलर और केल्विन केजी पर मोल। मोलर मतलब पर मोलर हो गया ना, एम ले नीचे ले आएंगे, yes. केबी इक्वल। अब ये सब तो आसान है चीजें, अब यूनिट तो फिर से नहीं समझाना, एक बार कहना मतलब समझ जाएंगे। डेल्टा टीबी अपॉन एम, तो फॉर्मूला आर इंटू एम इंटू टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज आर टीबी स्क्वायर P naught V square upon 1000 into LV, latent heat of vaporization. यहाँ पे TB क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब ये प्रॉपर्टी ही सॉल्वेंट की है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का जो सारा डेरिवेशन है बिल्कुल एलिवेशन कांस्टेंट जैसा ही है। जहां पे डेल्टा TF हुआ करता था, डिप्रेशन मतलब कम होना, डिक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ती है यहाँ पे डिक्रीज होती है, कोई T नॉट F, तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो TF इज लेस देन T नॉट F, डेल्टा TF इज T नॉट F माइनस TF। फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, KF वाटर का 1.86 होता है फॉर वाटर, यूनिट सेम, सब कुछ सेम होगा। और KF का फॉर्मूला हो जाएगा R T स्क्वायर अपॉन 1000 LF। LF क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जानते हैं क्या होता है सब लोग, व्हाट इज ऑस्मोसिस, Yes. बोलो। ऑस्मोसिस सब जानते हैं एक्चुअली। हमने क्या किया, प्योर लिक्विड लिया, प्योर लिक्विड, तो प्योर लिक्विड में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1। यहाँ सॉल्यूशन ले लिया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यहाँ पे लिक्विड की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, लेस दैट। और दोनों को सेपरेट कर लिया हमने SPM से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इधर से किधर लिक्विड मूव करेंगे, Pure liquid से solid. ये सबको पता है। दिस प्रोसेस इज व्हाट, Yes, yes, yes. ऑस्मोसिस। पर मैं चाहता हूँ इस प्रोसेस को रोकना, मैं किधर प्रेशर लगाऊंगा, इधर। तो मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। किधर किधर प्योर पानी है, लेफ्ट हैंड साइड, किधर गंदा पानी है, राइट हैंड साइड। गंदा मतलब कुछ मिला हुआ। अगर मैं इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, किधर लिक्विड मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट। Right. इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, वाटर फिल्टर पे रहता है। गंदे पानी से साफ
पानी को कहाँ भेजता हूँ मैं, प्योर लिक्विड की तरह। आप बोलोगे सर सॉलिड क्यों नहीं जाता, बिकॉज एसपीएम अलाउज ओनली व्हाट, लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब फॉर्मूला बड़ा प्यारा है, पाई इक्वल टू सीआरटी, पाई इक्वल टू सीआरटी। अब ये आया कैसे, ये लोग कुछ भी करते हैं। पीवी को डायरेक्ट किसके लिए था, गैस के लिए। उन्होंने क्या किया, इक्वल टू लिखा एन अपॉन वी आर टी, और एन बाई बी को लिख दिया सी आर टी, कोई हमने यहाँ पे लिख दिया, और पी को पाई बना दिया पी को पाई बना दिया, बोला इसको आप सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं। अभी तक हम ऊपर देख रहे हैं कि मोलैलिटी यूज हो रही थी, तो वो तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थे, तीनों में मोलैलिटी का आपको चेक करवाया। एक में मोलैलिटी का फॉर्मूला था, हमने डिराइव कर ली, रिमेनिंग में दोनों मोलैलिटी होती है। पर ये सी क्या है, मोलैरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, बट ऑल द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो कॉन्सेप्ट है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एक्वा सॉल्यूशन molality should be equal to what, molarity for solving problem, not numerical, theoretical question. They will never ask numerical question, theoretically कुछ पूछता है तो। अब खुद सोचो, अगर concentration इसकी कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड, बोलो कम लगेगी। तो सी बढ़ेगा तो पाई भी क्या होगी, अगर सी कम हुआ तो पाई भी क्या होगा, कम होगा। एनी डाउट, बोलिए। सर वो केबी का फॉर्मूला कैसे आता है? वो डिराइव करने की जरूरत नहीं है, वो गिवन फॉर्मूला है, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, हाँ। सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है, लिक्विड 1 लिक्विड 2, ये लो कॉन्सेंट्रेशन, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन, किधर से किधर लिक्विड मूव करेंगे बताइए। राइट टू लेफ्ट। राइट टू, क्यों, जब मैं लो कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूँ तो ये ऑब्वियस ही क्या कम है, अगर नहीं लिखता, कुछ सॉल्वेंट मेंशन नहीं करता, सिर्फ लिखता हूँ लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट क्या है, कम। अगर मैं ये कंप्लीटली मेंशन कर दूंगा लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कम है। लेकिन जब मैं सिर्फ लो कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूँ तो लिक्विड ऐसे फ्लो करेगा। यहाँ जो प्रेशर लगाओगे उसको क्या बोलोगे, ये लिक्विड का फ्लो तो ऑस्मोसिस है, जो प्रेशर लगाओगे उसको क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बोलेंगे। द प्रेशर अप्लाइड that should be equal to pi 2 minus pi 1, and that is not osmotic pressure. तो आप बोलोगे process of osmosis, तो osmotic pressure is defined with respect to only what, pure liquid। जब एक सॉल्यूशन को प्योर लिक्विड से सेपरेट करते हैं तो फ्लो ऑफ लिक्विड को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब डेफिनेटली ये भी लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2, दो लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड नहीं, सॉल्यूशन लिख देते बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं कहेंगे। अब इस सॉल्यूशन को अगर आप वाटर से सेपरेट किए होते, इसको सेपरेट किए होते, दोनों का अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर आता, जो डिफरेंस होता है वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, डिफरेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशन। एनी डाउट, बोलिए। तो ये डिफरेंस क्लैरिटी जरूरी है। अब मुझे बताओ, लो कॉन्सेंट्रेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, दोनों में लिक्विड सेम रखा बेटा, और सॉल्यूट क्या है वो मैटर नहीं करता, सॉल्यूट का नंबर मैटर करता है। तो सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है, सिंपल, अगर कॉन्सेंट्रेशन लो है, लेस है, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स भी क्या होगा, लेस होगा। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, लेस। RLVP क्या होगा, कम। तो RLVP अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, डेल्टा T भी ज्यादा होगा,
नहीं, डेल्टा टी भी कमी होगी ना, ऑल द क्वालिटेटिव वेपर प्रॉपर्टी आर लेस। प्रेशर ज्यादा होगा ना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉरी, सॉल्यूशन 2 के रिस्पेक्ट में। यस। अगर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट लेस है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो लेसर, यहाँ पे व्हाट कर देते हैं, लेसर कॉन्सेंट्रेशन तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स लेस, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लेस, RLVP लेस, वेपर प्रेशर मोर, ये लेस, तो बॉइलिंग पॉइंट लेस, फ्रीजिंग पॉइंट लेस, ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो मोर, कम डिक्रीज हुआ ना कंपेयर टू द सॉल्यूशन, ये भी। हाँ, ओके। जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्या है, कम। जो लो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब दोनों का सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो उसको हाइपरटोनिक, हाइपर लो का हाइपोटोनिक। हाइपरवेलेंट हाइपोवेलेंट था केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ पे आपको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है, दोनों में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बोलो, सेम होगी। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आइसोटोनिक का, वो क्लैरिटी मिलेगी तो आगे का थ्योरम कल पढ़ा पाएंगे आपको। कल की क्लास लग जाएगी, कल ये बुकलेट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मान लो 1 मोलर एक्वस NaCl है और 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है बताइए। बताइए, आप बोलेंगे कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, तो सेम ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। NaCl जैसे ही पानी में जाएगा किसमें स्प्लिट हो जाएगा, आयन। तो 1 मोलर का मतलब 1 मोल NaCl लिया हमने, तो कितने पार्ट, ये भी 1 मोलर हो जाएंगे, ये भी 1 मोलर हो जाएंगे, टोटल पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, Na+ इंडिविजुअल हो गई ना, Na+ अलग हो गई, Cl- अलग हो गए, दोनों की क्वांटिटी, दोनों का जो एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग हो गया, तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 मोलर। ग्लूकोज क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये नहीं टूटेगा, तो ये स्टिल क्या रहेगा, बोलो 1 मोलर। तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, किसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल मतलब हम तो 1 मोलर ही लिए थे, पर पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी था वो सॉल्यूशन में ज्यादा सॉलिड क्रिएट कर दिया, ज्यादा सॉलिड क्रिएट कर दिया मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा TB इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, बोलो, KB इंटू M है। पर ये M क्या है कि हमने जो लिया था, एक्चुअली M क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि ये M, ध्यान रखो, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का या एक्चुअल सॉलिड पार्टिकल्स होना चाहिए। तो KB इंटू M इंटू समथिंग करना पड़ता है। कभी हमने आपको पढ़ाया था वांटो फैक्टर, कभी डिस्कस किया है वांटो फैक्टर, कभी एक से आवाज आ रही है, सिद्धांत नहीं किया था हमने डिस्कशन, किया था सर। कुछ याद है किसी को, एक बार देख के रखिएगा, अगर लिखा हुआ, मैं पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से, समझाऊंगा अच्छे से, आप एक बार देख के रखना, देख के रखेंगे तो 5 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा 10 मिनट लगेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। चलिए, Thank you.